Hello students, now today is the last lecture for this chapter and the last topic is preparation of bakelite and melamine. In the previous topic we already discussed preparation of p-type, then fiber, and the last topic was rubber. Okay, and today we are going to discuss with preparation of bakelite and melamine, that is MB Patel. Okay, so the first one, that is bakelite, which is prepared from phenol and formaldehyde. So you can write phenol formaldehyde. Yes, phenol formaldehyde. So two important reactants are used in this preparation. One is phenol and another is formaldehyde. So first of all we have to take phenol. So phenol like this is benzene and here OH. So this one is phenol. Okay, so first of all phenol react with formaldehyde. Formaldehyde means HCHO, or you can write CH2O. So reaction occurs between these two in presence of either acid or base. So what happened between these two reactions? This reactant, that is excess in proportion. So we have mixture of derivatives of phenol like this. तो सबसे पहले आपको फिनॉल के डेरिवेटिव मिलेंगे. जैसे फिनॉल है, यहां से H रिप्लेस होगा, दैट इज ऑर्थो लोकेशन, और A हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पीछे अटैच हो जाएगा. So you have to write like this CH2OH. This is the first derivative of phenol. Another derivative in which substitution occurs at ortho as well as para. So this is second derivative of phenol, and the third derivative like this. Here again phenol, here CH2OH, CH2OH and CH2OH. So in the vessel we have mixture of derivative of phenols. Okay, so first of all reaction occur between these two, phenol and formaldehyde. So we have mixture, and that mixture is actually, that is derivative of phenol. Now we are interested in this part. Okay, so this component becomes our monomer. So this is the first molecule. This is the first molecule at ortho CH2OH. Now another same molecule, because we are going to prepare polymer and we know this is a long chain. Clear? मतलब monomer 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 ऐसे combine होते जाएंगे. Now between these two monomer condensation occurs at ortho location. It means यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन. ए लोकेशन भी ऑर्थो लोकेशन था, ए लोकेशन भी ऑर्थो लोकेशन है. यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन. That is removal of water. It means whenever two monomers combine, then one molecule of water that will remove. So if you consider in the form of long chain, then what happened between these two rings? Between these two rings we have which group? That is methylene. तो जो CH2 है वो यह दोनों के बीच में आ जाएगा. Okay, so you have to write like this finally. So this is a N monomer and polymerization occurs. So we have such type of long chain, and you have to remember like this. Draw 3 phenol like this,
okay, between these two ring which functional group, that is CH2, that is methylene. तो यहाँ पे आपको methylene मिलता है, that is dash. Okay, so this is a long chain, and this chain is known as polymer, but this is not bakelite. This chain is known as novelic. इसको क्या बोलते हैं? novelic बोलते हैं, and that is linear polymer without any branch. Okay, तो ये फर्स्ट चेन हो गई आपकी. ऐसे सेम चेन या नीचे भी आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, तो वो मैं भी आपको ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन उसमें फिनॉल है, वो इन्वर्टेड लोकेशन में मैं दिखा रहा हूं. यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, लेकिन नीचे OH लिखना है आपको. ओके, यहाँ भी फिनॉल. सो बाय दिस वे यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. अब ये दो रिंग थी, ऊपर जो फिनॉल मैंने बताया था उसमें ऑर्थो लोकेशन ये होता है. नीचे जो फिनॉल है उसका ऑर्थो कौन सा होगा? दिस टू. क्लियर? सो हियर CH2, अगेन हियर CH2, here CH2, and here also CH2, like this. Okay, so this is a novelic, and novelic is a linear polymer. Okay, अब देखो हम क्या करते हैं. ये जो novelic है उसमें हम बाहर से फिर से क्या डाल देते हैं? CH2O, that is formaldehyde. बाहर से थोड़ा एक्स्ट्रा और फॉर्माल्डिहाइड डाल दो. ठीक है, अब जैसे फॉर्माल्डिहाइड आप ऐड करोगे इसके अंदर, तो फॉर्माल्डिहाइड में से ये ऑक्सीजन और यहां से ये कौन सा लोकेशन है? दैट इज कॉल्ड पैरा लोकेशन. दोनों का पैरा लोकेशन, वहां कंडेंसेशन होगा. यहां से दो हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन, अगेन रिमूवल ऑफ वाटर. इट मींस फर्स्ट कंडेंसेशन occurs at ortho location. Clear? And second condensation occurs at para location. So due to condensation between two para location, again we have CH2, and that is cross link, like vulcanized rubber. In the last lecture we discussed how can you prepare vulcanized rubber. For that we have natural polymer. That is a long chain of natural polymer. First chain, second chain, third chain. Okay, and after that we have to add sulfur. तो सल्फर कहां पे सेट हुआ था? याद करो, थोड़ा दिमाग लगाओ. सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, दोनों का सेकंड, दोनों का थर्ड, बीच में आ गया था सल्फर. दैट इज क्रॉस लिंक. क्लियर? तो यहां भी सल्फर की जगह पे क्रॉस लिंक पे कौन आ रहा है? CH2, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रॉस लिंक पॉलीमर, which is known as bakelite. और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं bakelite. क्लियर? इसको बोलते हैं bakelite. ये क्लियर होना चाहिए. और bakelite जो है that is a cross link polymer. novelic है that is a linear polymer. So this is the basic difference between these two. और bakelite कहाँ पे यूज होता है? तो हमारे घर पे जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, like switch board, that is the best example of bakelite polymer. तो ये आपको याद रखना है. That is thermosetting. ठीक है? Once we prepared this polymer, you can't change its physical state by changing temperature. It's clear? So this is phenol formaldehyde. तो ये क्लियर होना चाहिए. क्लियर? बहुत सिंपल है. पहले फिनॉल लेना है, फिनॉल में फॉर्माल्डिहाइड डाल दो, that is excess. So we have derivatives of phenol. Now focus on this derivative. This becomes monomer, और ये monomer ऐसे combine होते जाएंगे. So first of all you have polymer, but that is novelic, not bakelite. Okay, bakelite में novelic bakelite में convert कब होगा? If you add further formaldehyde. Okay, और further formaldehyde आप add करोगे, so next condensation occurs at para location. And between two para location, again methylene group that is present, and structure becomes cross link. So this is a bakelite. Clear? Okay. Now next one, that is a melamine formaldehyde. ये कौन सा था? Phenol formaldehyde. So next one is melamine formaldehyde or melamine formaldehyde. Same way you can prepare melamine formaldehyde, लेकिन टेक्स्ट बुक में बहुत सिंपल वे में आपको बताया है.
तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, दैट इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड. तो ये जो रिएक्टेंट है दैट इज न्यू फॉर यू. ओके, अब इसका स्ट्रक्चर है जैसे बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, दैट इज 6 कार्बन. ओके, एंड ऑल कार्बन प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर. मेलामाइन में 3 कार्बन होते हैं और 3 कॉर्नर पे नाइट्रोजन है लाइक दिस. तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन, अगेन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन nitrogen, carbon and nitrogen. Here double bond, then single bond, double bond, single bond, double bond. And here NH2, here NH2, and here also NH2. This one is melamine, but this one is actually monomer. इसको बोलते हैं monomer. Okay. Then you have to add formaldehyde, that is HCHO, or you can write CH2O. So first of all we have one monomer like phenol derivative. Okay, और ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा रहेगा, फिर से N C N then C N C. Okay, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. अब देखो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और वो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा. सो हियर NH CH2OH and this becomes intermediate. This becomes intermediate resin and this becomes our monomer. तो सबसे पहले मेलामाइन जो है उसमें फॉर्माल्डिहाइड डालते हैं तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा and that is intermediate. और ये स्ट्रक्चर 1 by 1 ऐसे अटैच होगा, 1 2 3 लाइक दिस. ओके, तो इसके पीछे ऐसा, सॉरी यहाँ पे एक रह गया NH2, यस, और यहाँ भी NH2 लाइक दिस. अब ऐसे सेम स्ट्रक्चर वाले सारे मॉलिक्यूल 1 by 1 कंबाइन होंगे. ठीक है, तो यहाँ से OH ऑब्वियसली निकल जाएगा और यहाँ से H निकलेगा, दूसरे का NH का H पीछे होगा. हाँ, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन. Polymerization, and after polymerization we have polymer and we know formula of polymer, that is in the form of repeating unit. तो यहाँ पे उसकी फॉर्मूला लिखेंगे हम. तो फॉर्मूला में देखो क्या करना है, फिर से N C N C N C. क्लियर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. अब यहाँ से डायरेक्ट रिपीटिंग यूनिट, पीछे जो आएगा उसका NH2 पीछे होगा कि नहीं, तो वहां से H निकलेगा और यहां से OH. सो वी हैव NHCH2 डैश. यहां से H चला जाएगा तो यहां पे होगा NH. दैट इज लाइक लीनियर चेन. ओके, जैसे नोवेल एक मिला था वैसे. अब क्रॉस लिंक हुआ था तो ए पैरा लोकेशन, तो यहां भी ऐसे होगा, NH2 की जगह NH डैश हो जाता है. पूरा रिपीटिंग यूनिट इस फॉर्म में मिला है और इसको बोलते हैं मेलामाइन पॉलीमर. ये मोनोमर था, ये पॉलीमर है. और मेलामाइन कहाँ पे यूज होता है वो आपको पता है. नॉर्मली जब हम फंक्शन में जाते हैं, खाने की जो ट्रे होती है वो मेलामाइन की होती है. हम बोलते हैं कि हाँ मेलामाइन की डिश है. मतलब नॉर्मली जो किचन में क्रॉकरी हमारी जो होती है वो ज्यादातर मेलामाइन बेस पे भी रहती है. दैट इज द एप्लीकेशन. ओके, और दूसरे भी कुछ एप्लीकेशन है जो टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट पढ़ सकते हो. और ये दोनों जो है दैट इज बेस्ड ऑन फॉर्माल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. तो फॉर्माल्डिहाइड बेस हमारे पास दो पॉलीमर है, वन दैट इज फिनोल फॉर्माल्डिहाइड एंड सेकंड दैट इज मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड. क्लियर. तो ऑब्वियसली एक चैप्टर जो था उसमें जो 4 सेक्शन मैंने आपको बताए थे दैट इज कंप्लीटेड. प्रिपरेशन ऑफ पी टाइप, preparation of fiber, preparation of rubber and preparation of MB, melamine bakelite. Both are thermosetting. Both are thermosetting. Both are 100% synthetic. Okay. Both are cross-linked polymer and both are condensation polymer, not addition, because removal of water will take place. तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके,
अब लास्ट में 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दूं। एक पॉइंट है मोलर मास। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है, वैसे पॉलीमर का भी मोलर मास होता है। लेकिन पॉलीमर में जो मोलर मास है, इसके आगे एक वर्ड आता है, दैट इज एवरेज मोलर मास। Why in case of polymer we have to use average molar mass? The reason is, we know this is a one chain of polymer, this is a another chain, third chain, fourth chain, fifth chain, and we know length of each polymer chain is not same. Okay, because number of monomers are different. So if you find mass of each chain, then we have different values. Okay, so finally you have to consider average. और पॉलीमर में दो टाइप से एवरेज निकालते हैं, Mn और Mw। Mn का मीनिंग होता है नंबर बेस, Mw का मीनिंग होता है मास बेस। आप लकी हो, पुरानी टेक्स्ट बुक में दोनों की फॉर्मूला थी। मैंने आपको जो मटेरियल दिया है उसमें वो टॉपिक है। टाइम है तो आप एक बार देख लेना। Mn की फॉर्मूला भी है, Mw की फॉर्मूला भी है, ठीक है। और दूसरी भी कुछ मेथड है जिससे हम पॉलीमर का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। और एक मेथड अभी हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और उसमें एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था कॉलॉइड में। ओके, कॉलॉइड में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है 4, उसमें एक ही कॉलिगेटिव यूजफुल है, एंड दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ पॉलीमर। क्योंकि स्टार्च है, ये सब पॉलीमर है, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। तो वो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो एक्चुअली जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर है, इट मींस मैन मेड, ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसे प्लास्टिक कहीं पे है तो उसका डिग्रेडेशन अपने आप नहीं होता इन एनवायरमेंट, बैक्टीरिया नहीं कर सकते, एंड दैट क्रिएट पॉल्यूशन, वो आपको पता है। और इसीलिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में। और इसीलिए आपको पता है जो प्लास्टिक होता है तो ज्यादातर रिसाइकलिंग में यूज होता है। ओके, कुछ लोग बाहर रोड पे कुछ प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, आपको पता है वो क्यों कलेक्ट करते हैं? उसका पैसा मिलता है एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। मतलब रिसाइकलिंग की प्रोसेस होती रहती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो मैन है हम लोग, उन्होंने एक दूसरा एक पॉलीमर भी बनाया, दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। मेडिकल फील्ड में आपको पता है कैप्सूल आती है, टैबलेट जो है लेकिन कैप्सूल फॉर्म में। हाँ, तो कैप्सूल जो है उसमें सबने नोटिस किया होगा अंदर ड्रग्स होती है, ठीक है, और बाहर कोटिंग हो रहा है। वो जो कोटिंग है 2 कलर का होता है नॉर्मली, कोटिंग दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और जब वो कैप्सूल बॉडी में आप लेते हो और वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो जो कैप्सूल का जो कोटिंग है वो डिसॉल्व हो जाता है पानी में और ड्रग बाहर आ जाती है। ट्राई करना घर पे, ग्लास में पानी लेना और वो कैप्सूल को पानी में डाल देना। विद इन शॉर्ट टाइम ये जो लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पिघल जाएगा, इट मींस, और ड्रग बाहर आ जाएगी। दैट इज बायोडिग्रेडेबल। ऑपरेशन के बाद पेशेंट के स्टिचेस लेने होते हैं, तो वहां जो थ्रेड यूज होता है दैट इज नॉट लाइक सांकड़ आर्ट जो काइट फ्लाइंग डे में आप यूज करते हो, वो थ्रेड नहीं होता। दैट इज एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल, और वो हमारी बॉडी में अपने आप क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। दैट इज एप्लीकेशन। क्लियर? तो हमारी बुक में ऐसे 2 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में डिस्कशन है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज PHBV। फर्स्ट वन दैट इज PHBV। क्लियर? अब PHBV देखो, ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म में बाद में बता रहा हूं। पहले इसके 2 मोनोमर सेट करते हैं। फर्स्ट मोनोमर दैट इज 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अनदर मोनोमर
that is also 3 hydroxy pentanoic acid. So this is IUPAC. So it is easy to write its structure. Now see butanoic acid. So how many carbon? That is 4 carbon. So first group, that is COOH, first, second, third and fourth. Okay. और थर्ड नंबर पे कौन होगा? हाइड्रोक्सी. दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड एंड थर्ड. अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. थर्ड पे OH यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो पॉलीमर की फॉर्मूला इजी हो जाएगी. और यहाँ पे आपको लिखना है CH3, दैट इज फोर्थ वन. क्लियर? नाउ हियर CH and here CH2. This carbon is known as alpha carbon and this carbon is known as beta carbon. So its common name becomes beta hydroxy. Yes. कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, नॉट ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूटेनोइक दैट इज IUPAC पैटर्न. ओके. तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड. यस. नाउ हियर 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड. हाउ मेनी कार्बन? 5 कार्बन. सो COOH CC. अगेन थर्ड कार्बन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. थर्ड पे कौन है? हाइड्रोक्सी. So you have to mention here OH. Now fourth carbon here and fifth carbon here. So this one is CH3, CH2, CH and CH2. Clear? Like this. Now this carbon also alpha and this one is beta. तो इसका नेम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी. बीटा हाइड्रोक्सी. ये भी बीटा हाइड्रोक्सी है. बोथ आर बीटा हाइड्रोक्सी. इसको मैंने बताया ब्यूटेरिक एसिड और इसको बोलते हैं वैलेरिक एसिड. वैलेरिक एसिड. यस, दिस इज कॉमन नेम. ओके. नाउ वी हैव n monomer of this and n monomer of this. Between these two, condensation will take place. Condensation, polymerization. So again removal of water. So from here OH and from here hydrogen that will remove. And finally you have to write only repeating unit like this. ओके. तो यहां से क्लियर होना चाहिए कि हमें कहां से क्या निकालना है. तो COOH में से OH निकालना है और यहां से H. सो अगेन मेक सर्कल हियर एंड हियर. ओके. एंड व्हाटएवर द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेजेंट इन रिपीटिंग यूनिट यू हैव टू मेंशन स्टार्ट फ्रॉम हियर डैश. क्लियर? हियर ऑक्सीजन. नाउ CH, CH3, CH2, then C double bond O, then again oxygen, CH, CH2, CH3, CH2, C double bond O and dash. Now consider this functional group, that is ester. It means you can say PHBB, that is a ester group family, comes from ester group family like pterylene. Pterylene भी वहां पे था. So this is PHBB. Again I repeat, you have to remember just name of monomer, not polymer. मोनोमर आपको पता है तो पॉलीमर अपने आप लिख सकते हो. ठीक है. और इसको बोलते हैं, ये जो pH है इसका मीनिंग होता है P फॉर पोली एंड H फॉर हाइड्रोक्सी. हाइड्रोक्सी दोनों में है. क्लियर? तो ये वर्ड कॉमन हो गया. पोली बीटा हाइड्रोक्सी. पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट. फिर से को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट. पूरा फुल फॉर्म दिया है. बट यू हैव टू रिमेंबर शॉर्ट फॉर्म PHBB. एंड फॉर मोनोमर यू हैव टू रिमेंबर इट्स IUPAC नेम. सो इट बिकम्स इजी टू राइट दैट स्ट्रक्चर. क्लियर? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल. और एक जो मैंने बताया थ्रेड जो है स्टिचेस के बाद जो लेते हैं वो PHBB से होते हैं. कैप्सूल जो है उसका कोटिंग भी PHBB का होता है. तो ये पता होना चाहिए. एंड द लास्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दैट इज नाइलॉन 2, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, which is made up from one amino acid that is called glycine and another that is aminocaproic
acid. Both are amino acid. Amino acid में आपको पता है that is CH2 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 वैलेंसी. ओके एक वैलेंसी फिक्स होती है that is COOH and second valency that is NH2. This carbon is known as alpha carbon and whatever monomer obtained from any protein जो है that is polymer. ओके और प्रोटीन का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर आता है और लास्ट में आता है वो मोनोमर है एंड मोनोमर दैट इज अमीनो एसिड. ऑल अमीनो एसिड derived from protein that is alpha amino acid. We will discuss in next chapter that is biomolecules. Okay, बायो के स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है. तो प्रोटीन में से जो भी अमीनो एसिड आपको मिलेंगे ऑल आर अल्फा बेस. तो सारे अल्फा अमीनो एसिड होते हैं. मतलब COOH के जो साथ कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन और उसके साथ कंपल्सरी NH2 होता है. तो कार्बन की ये दो वैलेंसी फिक्स. थर्ड वैलेंसी दैट इज आल्सो फिक्स दैट इज हाइड्रोजन. बट इन केस ऑफ ग्लाइसिन fourth valency also hydrogen. So formula becomes like this. So this is the first monomer that is N molecules. Another aminocaproic acid. So again amino means NH2 in between how many CH2 that is 5 and the last one that is COOH. So again we have N molecules. Now between these two again condensation will take place. Removal of N molecules of water. So here OH will remove and here hydrogen. So like this OH and hydrogen. And finally you have to write structure like this in terms of repeating unit. So start from here dash again NH then CH2 C double bond O. Now here that is NH CH2 5 C double bond O dash. Now consider this portion that is amide. तो nylon word है that is amide. Clear? So this is nylon 2 nylon 6. तो ये आपको पता होना चाहिए. Now chapter is over और लास्ट में टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है. उसमें कुछ पॉलीमर्स के नेम आपको दिए हैं जो टेक्स्ट बुक में थ्योरी में नहीं है लेकिन टेबल में कुछ डाल दिया उन्होंने. ओके with the repeating unit and its application. So you have to remember that table also for MCQ purpose. तो ये क्लियर होना चाहिए. तो आपका ये चैप्टर्स पॉलीमर है यहाँ पे कंप्लीट हो गया. फर्स्ट लेक्चर दैट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड लेक्चर दैट इज क्लासिफिकेशन एंड द रिमेनिंग ऑल लेक्चर्स रिलेटेड विथ प्रिपरेशन. एंड प्रिपरेशन डिवाइड इनटू 4 कैटेगरी. First that is P-type, second that is fiber, third that is rubber, fourth MB and PHBB nylon to nylon 6. Clear? So ये chapter complete हुआ. Now in the next lecture we will start new chapter that is biomolecules. Clear? Okay. Thank you very much.